السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں نے کل ایک موضوع کیا تھا شادی کے بارے میں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں مگر تھوڑا سا آسان کر کے۔ یہ اصل میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے چند دوستوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک بھٹا صاحب نے اعتراض کیا اور چند اور دوستوں نے بھی اعتراض کیا، بھی شادی کیسے کر لیں، بجلی کا بل دے نہیں سکتے تو شادی کیسے کر لیں۔ شادی کرنا اصل میں مفت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ شیخو کہہ رہا مفت ہے۔ جی بالکل مفت ہے، انتہائی آسان، مفت، نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی، شادی ہو جائے۔ اصل میں بات یہ ہے محترم دوستو کہ ہم نے شادی کو، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ کچھ ایسی معاشرتی رسمیں جو ہندوانہ قسم کی ہیں، اگر ہندوانہ قسم کی نہیں ہیں تو خود سے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ شادی صرف ایجاب و قبول کا نام ہے۔ دو گواہ لے آئیں، وکیل لے آئیں، وکیل نہیں ہے، گواہ موجود ہیں، گواہ کے سامنے ایجاب و قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ شادی کا سرٹیفکیٹ یا فارم وہ جدید دور کے مطابق اس لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی قباحت نہ ہو، قانونی پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں۔ تو اگر پہلے شادی کا فارم کہاں ہوتا تھا؟ 4 بندے آئے، ایجاب و قبول کیا، شادی ہو گئی، بس۔ خطبہ، شادی کا جو خطبہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے تب بھی گواہان کے سامنے ایجاب و قبول کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ اس میں خرچہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ خرچہ ہم لوگوں نے خود بڑھایا ہوا ہے۔ مہندی کر لی، فلاں کر لی، لڑکی کا شادی کا جوڑا جناب 50,000 روپے میں بنوا لیا، جو آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلتا، اگلا اتار کے پھینک کے وہ مارتا ہے، بعد میں وہ پہنتی نہیں ہے۔ کیا پہنے بھائی؟ ہے جی، لڑکا شیروانی سلواتا ہے 5,000 روپے کی، دوبارہ وہ کبھی شیروانی میں نظر نہیں آتا، پھٹے پرانے پجاموں میں نظر آتا ہے۔ حال ہی وہی ہو جاتا ہے کہ وہ شادی میں خرچہ اتنا کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے قرض لے کے شادی کرتے ہیں۔ یقین کریں مانگتے پھرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، بہت غریب آدمی ہیں، ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہمارا ہیلپ کی جائے، ہماری مدد کی جائے۔ بھائی کیوں کی جائے؟ کیوں کی جائے؟ شادی میں خرچہ ہی کتنا ہے؟ اگر ان کو بتایا جائے، نہیں مانتے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اپنی ذات پر ہوئے جو پریکٹیکل لائف ہے میری، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ شادی کا کوئی خرچہ نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لڑکی سے کیوں جہیز لیتے ہیں؟ مت لیں۔ اس کے ماں باپ اس کو چارپائی دے دیں، تکیہ دے دیں، چادر دے دیں، جو مرضی دے دیں، نہیں دینا نہ دیں۔ لڑکے کی ذمہ داری ہے اپنی گھرداری پورے کرے، چیزیں لے کر آئے اور کھانے پینے کا سامان لے کر آئے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ ہم خود لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، شادی کو، نکاح کو۔ مسجد میں بھائی نکاح کر لو۔ اگر آپ مسجدوں سے زیادہ چڑ کھاتے ہیں تو گھر میں بھائی ایک کمرے میں نکاح کر لو، 4 گواہان کو بلاؤ، شادی کر دو، بس ٹھیک ہے۔ 2 گواہ ضروری، شادی کر دو، لڑکا اپنے گھر، لڑکی اپنے گھر، جناب لڑکی کو لے کے چلا جائے، اپنا علیحدہ رہے، نہ کوئی قباحت پیدا ہوگی، نہ کوئی طلاق ہوگی، نہ کوئی مسائل پیدا ہوں گے۔
जैसे कल मैंने अर्ज़ किया कि लड़की के नाक मुंह पे ही नहीं चढ़ते लड़के, और लड़कों के नाक मुंह पे नहीं चढ़ती लड़की। ये हमारा माशरा असल में अबतरी का शिकार है और हवस परस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से ये माशरती बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और शादियां नहीं हो रही, कंवारियाँ बैठी हुई हैं, बेवा भी, तलाक याफ्ता भी, हत्ता कि कंवारी लड़कियां, जिसका मैंने कल जिक्र किया, अब उसका दोबारा जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि सादगी से शादी पे कोई पैसे खर्च नहीं होते, मुफ्त में कर लें। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। भाई निकाह किया, 1000-2000 रुपए की मिठाई लाई, खिला दी, मस्जिद में निकाह कर दिया। कितने बंदे आए, चाहे सारी नमाजी बैठे हो, 100 बैठे हो, कोई बात नहीं, बरकत पड़ जाएगी, निकाह कर लिया। दूसरी अहम बात, निकाह में मौलाना हजरात यानी कि जो निकाह ख्वाह साहब होते हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लेते हैं। भाई ना दो, उन्हें कहा मौलवी साहब जो गवर्नमेंट का खर्चा है वही देंगे, आपने निकाह पढ़ाना है। मौलवी साहब इनकार करें निकाह पढ़ाने पे, उसका रजिस्ट्रार का लाइसेंस कैंसिल करवाने का कानून मौजूद है। आप उसका रजिस्ट्रार का लाइसेंस, जो निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस है, वो कैंसिल करवा दें कि ये मौलवी फ्रॉडी है, ये निकाह रजिस्ट्रार फ्रॉडी है, 5-5 10-10 हज़ार रुपये लेता है, एक पैसा ना दें। हाँ, अपनी खुशी से दो, देना चाहें दे दें। वैसे तो बहुत से मैंने ऐसे निकाह खान रजिस्ट्रार देखे हैं जो पैसे भी नहीं लेते, मगर बहुत सौ में से 90% ऐसे लोग हैं जो 5-5 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, एक पैसा नहीं। मैं तो कहता हूं मौलवी को ही ना बुलाएं। निकाह का खुतबा मसनून है, मसनून से मुराद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको आता है पढ़ लें, नहीं आता तो तब भी इजाब कबूल से निकाह हो जाएगा। और खुद ही लड़की से पूछ लें, वकील को बुला के, वकील से मुराद कोई भी वकील, माँ बाप मुकर्रर कर दें, भाई वकील मुकर्रर कर दें, लड़के से पूछ लें, हाँ भी आपको ये रिश्ता कबूल है, आपको ये निकाह कबूल है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, हक महर इतना। हक महर की जहाँ बात आती है, साथ ही मैं बात बताता चलूँ कि हक महर मसनून तरीके से रखें, उतना रखें जितना ज़रूरी है, बोझ ना बने न लड़के पर न लड़की पर। तो इजाबा कबूल, शादी हो गई। नेक्स्ट आ गया वलीमा। वलीमा अपनी बसात के मुताबिक लड़का अगर अपने घर वालों को बुलाकर, रिश्तेदारों को, 4 बंदों को बुलाकर घर में एक एक खजूर भी खिला देता है, दूध का गिलास पिला देता है, पानी का शरबत पिला देता है, खाने का बंदोबस्त उसके पास नहीं है, खिला देता है, शादी हो गई। अब मुझे बताएं शादी पे पैसे कितने लगे? भाई अगर ज़्यादा शौक है लड़की को घघरा पहनने का, साड़ी पहनने का, वो क्या दूसरा क्या कहते हैं यार, एक और चीज़ है जो लड़कियां शादी पे पहनती हैं, ज़हन में इस टाइम नहीं आ रहा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, चलें बहरहाल जो भी है। तो भाई किराए पे ले आओ, अपने किसी जिसकी शादी कज़न की हुई है, किसकी हुई है, उससे मांग लो, पहन लो, आधा घंटा पहनना भाई, उठा के उधर फेंक देना लड़के ने, जरूरत ही नहीं है। शरारे घघरों को फलां की। अच्छे कपड़े, सलीके के कपड़े पहने जाएं। अगर शौक है तो ठीक है, कर लें, मगर मुफ्त में शौक करें, पैसे का ज़िया मत करें। कितने पैसे खर्च हुए जी आपके? कुछ भी नहीं, 1000 रुपये मिठाई का निकाह पे खर्च हो गया। खाना आप बिल्कुल मत खिलाएं लड़के वालों को, भाई अपने पिंड से आए हैं, खाना खा लो, जो घर के 5-7 बंदे हैं खाना खा लो, ज़्यादा बारात मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 5-7 घर के बंदे बुलाओ, निकाह कर दो। ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, अनहोनी बातें नहीं कर रहा, ये हकीकी बातें कर रहा हूं जिस पर आप लोग अमल नहीं करते। मैं अपने ऊपर बीती बातें भी कर रहा हूं, कोई खर्चा नहीं था, शादी कर दी बच्चियों की, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
सब हंसी खुशी रह रहे हैं। कब आती हैं बीच में, बहुत सारी आती हैं, उनमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें होती हैं। हम आपस में समझते हैं कि हम परेशान हो गए, ये हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर अल्लाह ताला पूरियां कर देता है। भरोसा अल्लाह ताला पे रखो, किसी और पे नहीं। बहरहाल एक अलग मौजू है, इस पर फिर बात करेंगे। बात निकाह की हो रही है, तो मुझे बताएं, मुफ्त में शादियां क्यों नहीं होती? क्यों मांगते हैं लोग कि मेरी बच्ची गरीब है, शादी करनी है, और ऐसी गरीब बच्चियों को देखा है जनाब, अल्ले तल्ले में उड़ा रहे हैं पैसे, हाल बुक करवा रहे हैं जी, उधार पैसे पकड़े हैं, गरीब लड़की की शादी करनी है जी, फलां चीज़ ला रहे हैं, फलां चीज़ ला रहे हैं, और फिर मेहंदी की खौफनाक रस्म भी कर रहे हैं, क्या उधार के पैसों से गरीब बच्ची की शादी कर रहे हैं, धूम धड़का भी कर रहे हैं, नाच गाना भी हो रहा है, ढोल ढमक्का भी हो रहा है। भाई क्या ज़रूरत है? हम लोगों ने शादी को, निकाह को मुश्किल बना दिया है। ये जितनी कवारी बेवा औरतें, तलाक याफ्ता या कवारी लड़कियां जिनकी उम्र ढलती जा रही है, इसी बिगाड़ का नतीजा है। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने आपके सामने हक़ाइक़ बयान किए थे, वो भी बिगाड़ का नतीजा है। मगर निकाह ना होना, निकाह ना करना, ये सबसे बड़ी वजह उनमें से एक ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं जी। कई तो ये लोग हज नहीं करते, इस्तात रखते हुए हज नहीं करते, कहते हैं जी पहले अपनी बेटी की शादी बाद में हो जाएगी, पहले हज कर रहे हैं। भाई बेटी बैठी हुई है, पहले उसकी शादी कर ले, उम्रा हज बाद में कर ली, वो फर्ज है, हज भी फर्ज है। मगर बेटी बैठी हुई है, सरकार हज करने जा रहे हैं, मुफ्त के पुराने सारे गुनाह माफ करवा के आके लोगों को फिर लूटना शुरू कर देंगे। हाँ जी, बच्चियों की उम्र 30, 35, 35, 40 साल कर देंगे, शादी नहीं करनी। गरीब हैं भाई, काहे के गरीब हैं? गुर्बत खुद अपने ऊपर तारी की हुई है। ज़रा से पैसे मिल गए जनाब, अल्ले तल्लों में उड़ा दिए, धूम धड़के से शादी कर दी। वो शादी तो मुफ्त की बात है। उठो, सोचो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोचो। शादी इंतहाई आसान है। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को धोखा मत दो। और बच्चियाँ और बच्चे इस माशरे में अपनी शोबाजी के लिए अपने आप का बेड़ा गर्क ना करें। जो लड़का पसंद है, अच्छा है, करैक्टर का अच्छा है, मुंह मत्थे लगता है, मुंह मत्थे सारे ही लगते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको बना दिया वो सारे को मुंह मत्थे अच्छे हैं। उठो भाई, अच्छा लड़का है, शादी कर दो, कमाता है, बस ठीक है। किस तरीके से कमाते हैं आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ऑफिस में भाई ऑफिस वाला लड़का चाहिए, फलां लड़का चाहिए, फलां लड़का चाहिए, कल वाली बातें फिर दोहरा रहा हूँ, फ़ायदा कोई नहीं। मुद्दा मेरा ये था कि भाई शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़ाएं, जेस की लानतों से बचें, फजूलियात के ख़र्चों से बचें। शादी पर आपका 5,000 से 10,000 से ज़्यादा खर्च हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं यकीन तो मेरे पास आ जाइए। को आप अपनी बच्ची की शादी करवाना चाहते हैं, ये बच्चे की शादी करवाते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह 5-10 हज़ार रुपये में शादी हो जाती है। हिम्मत करें, करके देखें। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।